So machine is any device or any arrangement which reduces the human effort. That is the simplest definition. A device or arrangement which reduces the human effort. Like that's the simplest definition. जिससे भी हमारा काम आसान होता हो, that is called machine. Now, a technical definition is a device which we use either to overcome a large force or to a device by which we can, so I'm just quoting this from your book, by which we can overcome, we can multiply force or we can multiply speed. We can overcome a large force also called as load, right? A device by which we can overcome a large force, which is also called as load, at some point or change the direction of force in the convenient direction. Change the direction of force, or we can obtain a gain in speed, right? A device by which we can overcome a large force, that is the first possible use of machine. Second, we can change the direction of force at a convenient point. In a convenient direction, or by which we can gain in speed, by which we can gain speed. So this is a common machine use. Machine is used to overcome a large force. हम सीधे कोई काम नहीं कर सकते. We are using a simple machine, right? So a simple machine is any device which reduces the human effort. ये तो एक normal सा definition है. अब इसके possible ways क्या क्या हो सकते हैं? We are not able to directly lift something. हमने कुछ machine use कर ली, and we are talking about the simple machine only. Like any body cannot be taken vertically upwards. Vertically सीधे नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? We use an inclined plane. Inclined plane is an example of, सीधे ले आ सकते हैं, but हम उसको ऐसे roll करके the inclined plane, with the help of inclined plane we can take it up. So inclined plane is also an example of machine, simple machine. This is the first definition. Second, change the direction of force. Example इसमें हम change करते हैं direction. जैसे जब हमें bucket से well से water निकालना होता है, प्रॉब्लम क्या, अगर हमने सीधे बकेट निकाली, then you have to lean into that direction, and there is a chance that because of the torque provided by this tension, you may also fall inside. You may fall inside the well. So instead of pulling it up like this, हम इसकी direction change करते हैं with the help of a pulley. With the help of a pulley and something, so there's a pulley arrangement. The bucket is not directly pulled up. Bucket is pulled up by using this pulley arrangement. So now you are changing the direction in a convenient way so that you don't fall inside. But sir, both the ways में तो human effort force तो same ही लगेगा, right?
पुली इसमें सेम ही लग रहा है, यस एब्सोल्युटली, बट टॉर्क की डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए आपको हेल्प मिल रही है, बिकॉज पहले चांसेस है कि बिकॉज ऑफ दिस टेंशन यू मे टेंशन टॉर्क यू मे गो इनसाइड। सर एफर्ट तो सेम ही लग रहा है। फोर्स सेम लग रहा है, इसलिए तो यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लाई है, तभी तो और करके बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। और पहले केस में हाँ फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ओवरकम में फोर्स मतलब लार्ज फोर्स था जो आप सीधे नहीं उठा सकते थे, इट वाज वेरी हैवी, सो दैट्स व्हाई यूज्ड इंक्लाइन प्लेन। ओके सर, समझ गया। Second एक case, we are using pulley. That pulley is also an example of a simple machine because with the help of this pulley, you have changed the direction. I am taking the example in the same sequence. पहले केस में हमें force overcome करना था. In the pulley has changed the direction. पहले हम सीधे ऊपर pull कर रहे थे, अभी हम pulley से इसकी direction change कर ली नीचे की तरफ. नीचे की तरफ आप जितना भी effort लगाना चाहो लगा सकते हो. You will not fall into the well, right? और तीसरा क्या था? Gain in speed. So gain in speed, example number one, inclined plane. Example number second is pulley. Example number three. Example number three is with the help. Example number three is scissor. Pair of scissors. So like for example, in the case of scissor, what happened? So with the help of scissor, when we move it slightly, हम इधर हाथ थोड़ा मतलब ये assume कर लेना it is a scissor. So this is हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा ही move करते हैं, slight small movement, but because of this longer length यहाँ पे movement ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं speed multiplier. This is called speed. आपने थोड़ा सा effort को move किया, the displacement of your hand is less, but this load arm moves much larger. इसलिए हम longer length of the piece of cloth या paper जो भी हम cut कर रहे हैं, हम उसको ज्यादा cut कर सकते हैं. This is a speed multiplier, right? मशीन जो एफर्ट को रिड्यूस करे, एफर्ट रिड्यूस करने में पहला काम बहुत हैवी वेट जो हम डायरेक्टली नहीं लिफ्ट कर सकते, दैट वी कैन लिफ्ट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन. सेकंड वी कैन नॉट वी कैन नॉट डायरेक्टली लिफ्ट द बकेट फ्रॉम द वेल, अंदर गिरने का चांस है, सो दैट्स व्हाई वी चेंज द डायरेक्शन. So with the help of the simple machine, we can also change the direction of force in the convenient direction, right? Fine. Next, pulley से हमने direction change कर ली, and third one is scissor. Scissor can multiply the force. So simple machine की functions क्या क्या हो सकते हैं, एक बार फिर से list out कर लेते हैं. Functions और uses of simple machine. और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, we will discuss one by one all of them in detail. Function of simple machine. Yes, the first function is to lift a heavy load by applying a less effort, which is called force multiplier. Just a second. ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट इज इन लिफ्टिंग a heavy load.
First is acts as a force multiplier. थोड़ा सा फोर्स लगा के हम उसको बहुत ज्यादा बना सकते हैं. We can multiply with the help of a simple machine. By applying less effort, we can produce a heavy load. In lifting a heavy load by using a less effort. Example जैसे कार जैक या ट्रक के जो जैक होते हैं. In lifting a heavy load by applying less effort. श्रेय, यस सर. एग्जाम्पल बताना फोर्स मल्टीप्लायर के कुछ जो आपने देखे हो डेली लाइफ में. एक तो मैंने बता दिया, दैट इज जैक, कार जैक यूज्ड टू लिफ्ट द कार. सर मैं एग्जांपल दे सकता हूँ. यस यस एब्सोल्युटली. सर रेंच, वो टॉर्क के थ्रू इट हेल्प्स ओपन टाइट नट्स. रेंच लोड थोड़ी उठाते हैं उससे. दैट्स नॉट फॉर द लिफ्टिंग लोड. एक तो मैंने बताया था अभी, सर व्हील बैरो. व्हील बैरो. ओके यस, क्या होता है वो? सर जो वन टायर पे चलता है, वो जो लोड उठाता है. कार. ओके, सिंपल एग्जांपल पूछना यार, बुक से देख जेसीबी के बोल रहे हो. काउंट होगी क्या? पुलीज, पुली के हेल्प से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. पुली अगर सिंगल पुली लगाओगे तो फोर्स मल्टीप्लाई नहीं हुआ, मल्टीपल पुली लगा के. इनफैक्ट आर्किमिडीज ने बोला था मुझे अर्थ से बाहर खड़े होने की जगह दे दो, मैं अर्थ को उठा के दिखा दूंगा. दैट वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय आर्किमिडीज. सर क्या बोला था? मुझे अर्थ से बाहर कहीं खड़े होने की जगह दे दो, मैं अर्थ को उठा दूंगा. I can lift the whole earth with the help of pulley arrangement only, by the way. सर आर्किमिडीज ने थ्रू द हेल्प ऑफ लेवर्स एंड पुलीज एक पूरे शिप को उठा लिया था. हाँ, यस 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 एब्सोल्युटली. तो पुली जो हमने भी से एग्जांपल देखा वो केवल डायरेक्शन चेंज करने वाला था, बट इफ यू यूज मल्टीपल पुलीज, नॉट जस्ट वन सिंगल पुली, वी आल्सो गेट द फोर्स मल्टीप्लायर. जैक, पुली, इंक्लाइन प्लेन, पीछे एग्जांपल देखा हमने, इंक्लाइन प्लेन से भी सर, हम सकते हैं. जेसीबी यस, काउंट होगी क्या? तो वो भी तो जेसीबी. वो भी तो लोड उठाती है. इन्हें उसका काम तो खोदना होता है यार, वो उठाना थोड़ी. ओके. उठाता थोड़ी है, वो तो कुछ और टास्क करता है. मतलब ठीक है, उठाता भी है खुदने के बाद, वो अलग बात है. बट अभी हम सर बात बट करें वो आपके तो सामने कुछ थोड़ा रखा हुआ है. कॉम्प्लेक्स मशीन हो गया ना, बिकॉज दैट्स मेनी मशीन्स कंबाइंड इनटू वन. हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. दैट्स नॉट अ सिंपल मशीन. सिंपल मशीन मतलब इसमें हम कोई बाहर से कुछ पावर नहीं यूज कर रहे हैं. देयर इज नो अदर एनर्जी बीइंग यूज्ड. ठीक है. एनली एनी काइंड ऑफ बार टू लिफ्ट स्टोन. जैसे सपोज ये कोई हैवी स्टोन है, आप सीधे नहीं खिसका पा रहे हो उसको, देन यू यूज सम मेटेलिक बार, और थोड़ा थोड़ा करके हम इसको आगे मूव करते जाते हैं. सो अ मेटल बार यूज्ड फॉर कोई भी बार, अ बार यूज्ड टू लिफ्ट. लिफ्ट तो नहीं होगा एग्जैक्टली, थोड़ा थोड़ा करके ये आगे की तरफ मूव करेगा. A heavy stone. विक्रमादित्य ने एग्जांपल ऑफ फोर्स मल्टीप्लायर, जिसमें हम कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं. ओके चलो ठीक है, अभी और देखेंगे हम, अलग अलग केसेस में देखेंगे. मशीन बहुत तरह की होती है. पहला काम मशीन का था फोर्स को मल्टीप्लाई करना. फोर्स मल्टीप्लाई करने में पुली इज द इजीएस्ट वन, सबसे ज्यादा हम पुली यूज करते हैं. और ये कार जैक, कार जैक या ये कैसे काम करता है, इसका हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे इन द फ्लूइड चैप्टर, प्रेशर चैप्टर. कार जैक में हम थोड़ा सा बस 1 न्यूटन 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, एंड इट बिकम्स 1000 न्यूटन, 10,000 न्यूटन, और कितने भी टाइम्स फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द with the help of with the help of the principle of some pressure of a liquid. इसके अंदर लिक्विड होता है इसलिए. सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ इज to in changing the direction of effort and convenient point. In changing
the point of application of effort in a convenient direction to a convenient point. Right? Okay. Convenient point पे डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम? जैसे एग्जांपल तो बताया अभी मैंने, कौन सा था एग्जांपल वो पुली वाला। पुली को हम डायरेक्टली सीधे नहीं उठाते हैं, मतलब कोई भी वो जो बकेट लिफ्ट करनी है, देन वी डोंट गो डायरेक्टली बिकॉज चांसेस है कि आप नीचे गिर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे आपके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। सो देयर इज अ चांस दैट यू मे फॉल इनटू द वेल। इसलिए हम उसको पहले पुली से उसको अपनी तरफ हम एक नीचे की तरफ डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। अनदर वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल इज साइकिल। साइकिल में हमें घुमाना कौन सा वाला व्हील होता है साइकिल को चलाने के लिए? पीछे वाला, राइट? सर बट वो तो that takes advantage कि the small gear will spin a certain amount of times for one spin of the larger gear. नहीं, गियर की बातें नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है साइकिल को चलाने के लिए हमें कौन से वाले व्हील को घुमाना होता है? Back wheel. बैक व्हील, रियर व्हील ना। क्यों क्योंकि जब रियर व्हील मूव करेंगे फोर्सिबली तो वो ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करता है, ग्राउंड हमें आगे की तरफ फोर्स लगाता है। ग्राउंड एक्सर्ट फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हमें इसको पीछे की तरफ रोटेट करना है। एक तो आपने सर्कस में साइकिल देखी होगी, एक सिंगल वाली जो साइकिल होती है, दैट सिंगल व्हील। बट अगर पीछे वाले को लगाना है और हमें बैलेंसिंग भी चाहिए, देन वी नीड टू व्हील्स एटलीस्ट। बैठने के लिए थोड़ा फ्रेम ऐसा हो कि हम उस पर स्टेबल होकर बैठ सकें। सो हमें रोटेट तो उसको करना है, बट अदर देन रोटेटिंग दिस, हम कन्वीनियंट पोजीशन पे विद द हेल्प ऑफ चेन एंड दैट गियर मैकेनिज्म हम उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क को कन्वीनियंट डायरेक्शन में चेंज कर लेते हैं, सो दैट यू सिट कंफर्टेबली एंड यू मूव दिस पैडल। डायरेक्शन हमें लगाना था इस पीछे वाले व्हील पे, but with the help of chain and this pedaling arrangement, now we apply force at that place जहां पर हम बैठे हुए। Otherwise we would have to use only a single wheel, rear wheel, जैसे कि सर्कस में साइकिल होती है, but उसमें balancing would become very very difficult, right? एग्जाम्पल समझ में आ गया ये? रियान, तेजस्वी, विक्रमादित्य, Yes, sir. right? So the effort, which is a kind of torque, is applied on the pedal instead of directly applying on the rear wheel. So this rotates और यहाँ पर gear mechanism and this chain mechanism helps. सर आप कोई और एग्जांपल दे सकते हो इसी पॉइंट का? बहुत सारे यार मशीन जितने भी होते हैं मोस्टली, मतलब ऐसे रोटेटिंग वाली इतनी मशीन होती है, जैसे जो केटल के लिए उनकी कुछ फूड कटर जो मशीन आती है, देखा आपने? मतलब अब तो मैनुअली नहीं होती, ब्लेड से मशीन से होती है, बट पहले मशीन से होती थी, बड़ा सा उसमें व्हील होता था एंड देयर इज अ बिग साइज ब्लेड्स कनेक्टेड टू इट। सर मिक्सी में? हाँ, मिक्सी की बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो चारा काटने वाली मशीन आती थी पहले। सो देयर इज अ बिग ब्लेड और अंदर से इधर कुछ इसको हैंडल लगा होता है, हैंडल से रोटेट करते हैं पकड़ के। व्हेन यू रोटेट इट, सो आपको फोर्स लगाना था वैसे यहाँ पे, बट यू डोंट अटैच इट हियर। हाँ सर, ये तो हमने फोर्स वाले चैप्टर में ही करा था। हाँ, इसको जब रोटेट करते हैं यहाँ से, देन दिस स्टार्ट रोटेटिंग। तो हम कन्वीनियंट अपने डायरेक्शन में जहां भी हमें इजी लगता है वहां पर अपने हिसाब से कन्वीनियंट पॉइंट पे चेंज कर लेते हैं। फोर्स लगाना था, रोटेशन करना था इस व्हील को, हम उसको अपने हिसाब से
जैसे all the these जो भी एग्रीकल्चर में मशीन्स यूज होती हैं, थ्रेशर एंड ऑल, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, उसमें एक हम बेल्ट मैकेनिज्म यूज करते हैं। पीछे एक रोटेटिंग व्हील होता है छोटा सा और आगे बड़ा सा, like all the oil spiller and all those have. So with the help of belt, पीछे एक rotating machine होती है which is connected with the tractor wheel में tractor rotating axle, या फिर किसी भी locomotive के साथ, किसी भी मशीन के साथ। और यहाँ पर हमें जो भी मशीन चाहिए whatever you want, जैसे you know thresher and all, oil spiller जिससे oil निकलता है सरसों से, so all those kind of machines we cannot apply direct torque, so that is why we take the help of changing the direction, changing the force at a convenient point. So ये convenient point हो गया because सीधे उस मशीन में हाथ डाल के जिसमें से हम ऑयल स्पिल करते हैं, ऑयल को, है ना, जैसे ग्राइंडिंग द ग्रेन, जो कितनी भी ग्राइंडिंग मशीन्स होती हैं, all those big one, not the mixer grinder। हाँ, तो ये ग्राइंडिंग मशीन इज नॉट अ सिंपल मशीन, लेकिन जो हमने ये बेल्ट में लगा दिया और ये जो दो व्हील लगा दिए, दिस इज अ सिंपल मैकेनिज्म, दिस इज अ सिंपल मैकेनिज्म, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल मशीन। समझ गए मिस्टर विहान? अंडरस्टूड दीस एग्जांपल्स? यस सर, बेसिकली वो डिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं पॉइंट्स पे, तो वो डिस्टेंस मतलब जहां पर आप आराम से लगा सकते हो। अब यहाँ पर तो बड़ी सी हैवी मशीनरी लगी हुई है, इसमें आप ऑयल डालते हो, फिर अंदर वो जाता है, फिर गलती वही से है भी कि हाथ चला, डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से, तो फोर्स कम लगाना गलती से पड़ेगा। भी आपका हाथ चला गया अंदर तो उसका भी तेल निकल जाएगा। इसलिए दैट्स व्हाई वी चेंज इट टू अ कन्वीनिएंट पोजीशन। हम उसको यहाँ पर एक्सेल रोटेट करते हैं एंड देन विद द हेल्प ऑफ बेल्ट इट इज रोटेटेड, so you are safe, you are quite far from the heavy machines, right? So जो भी convenient point है उसको हमने चेंज कर दिया। अब सेकंड केस होगा convenient डायरेक्शन में, जैसे हमने केस किया था पुली वाला, इसमें तो हमने पॉइंट ही बदल दिया, हमें लगाना कहीं और था फोर्स, हम लगा कहीं और रहे with the help of this gear mechanism and belt mechanism। विक्रमादित्य अंडरस्टूड? Yes, sir. अच्छा ठीक, ना समझ में आया पूछ लेना, क्योंकि ये सब थोड़ी चीजें हो सकता है प्रैक्टिकली आपने ना देखी हो, मोस्ट ऑफ इट लोग मोबाइल जनरेशन से बिलोंग करते, सो कोई बात नहीं, मैं आपको गूगल में इमेज दिखा दूंगा। ये दूसरी वाली आ गई, कोई बात नहीं, लीव इट। ठीक है, भावनाएं समझो अभी के लिए। बस ये भी एग्जांपल था। थर्ड इज इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। पहला था हमने एफर्ट का पॉइंट ही बदल दिया, द सेकंड वन इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, सीधे लगाने में पंगा है, in changing the direction of effort। Changing the direction of effort, that example is when we are changing the like the pulley one, a single fixed pulley is never used to gain the force or direction or multiplier, a single fixed pulley, multiple pulley लगाएंगे then there is a chance of getting a force multiplier।
जैसे एग्जांपल पीछे हम लिख ही चुके हैं, सिंगल फिक्स पुली इज यूज्ड टू change the direction of effort while pulling the bucket. Is used to change the direction in pulling the bucket. ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया था। जब हम सीधे उठाते हैं विदाउट यूजिंग द पुली, इफ यू आर यूजिंग द, हम एफर्ट किधर लगा रहे हैं, देन वी आर अप्लाइंग एफर्ट इज अपवर्ड डायरेक्शन। जब हम इसको पुली की हेल्प से कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ पुली वी आर अप्लाइंग एफर्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ओके। फोर्थ एप्लीकेशन इज, तो ये हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। एनी अदर एग्जांपल इन विच द चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट? मोस्टली पुली, मोस्टली पुली। फोर्थ इज सिंगल पुली in obtaining the speed or as a speed multiplier. पहला था force multiplier, fourth one is as a speed multiplier. हम effort बहुत थोड़ा सा करेंगे slowly, but the load will move much faster. Greater movement of effort, sorry, load by small movement of effort. Greater movement of load by a smaller movement of effort. एग्जाम्पल सीजर, ये भी हम समझ चुके हैं कैसे वर्क करता है। पीछे का हैंडल छोटा सा होता है, हम उसको थोड़ा मूव करते हैं, हम उसको थोड़ा सा मूव करते हैं, बट द फ्रंट पोर्शन ब्लेड मूव्स मच लार्जर। ओके, दीज आर दी फोर एप्लीकेशन, और सबके हमने एक एग्जांपल देखे। वी विल कैटेगराइज आल्सो लेटर ऑन। फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर में क्या रिलेशन हो सकता है, सम टर्म्स रिलेटेड विद द मशीन। मशीन के लिए जो हम सिंपल मशीन के लिए टर्म्स यूज करते हैं, सम टर्म्स यूज्ड फॉर द मशीन related to simple machine, that is also important to mention. मशीन तो बड़ी कॉम्प्लेक्स भी होती है, हो सकती है। फर्स्ट इज लोड एफर्ट। लोड is usually denoted by L. Right, so the force that has to be overcome, वो रेजिस्टिव फोर्स भी हो सकता है, वो लिफ्टिंग फोर्स भी हो सकता है। द रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स that has to be overcome, force to overcome is called load. जैसे in the case of the car, we have to lift the car weight. So weight of the car will be the load. Second, effort denoted by E. The force applied on the machine to overcome load. The force applied on the machine to overcome load. It's called effort. So ये ना simple definition है, बुक में लिखी है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ just for the sake of completion of your notes. मतलब समझना ज़्यादा important है। लोड जिसको हम उठाते हैं, effort जो हम लगाते हैं, with the help of less Sir, one effort. second, let me please copy this down before you move on to the next slide. हाँ, sure, but
Sir, I'm done. Third is mechanical advantage. Third is called mechanical advantage. Mechanical advantage is denoted as MA. Mechanical advantage is also called as gain. Gain का मतलब हमने कम effort लगा के ज़्यादा load उठा दिया. Then that is called greater than तो 1. ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था ना? हाँ, right. ये वही वाला है. Absolutely, yes. Mechanical advantage क्या है? The ratio of load overcome to effort applied. The ratio of load to effort applied. The ratio of load to effort applied is defined as mechanical advantage or gain also. Right? So अगर वो machine हमें force multiplier की तरह काम कर रही है, then its mechanical advantage should be greater than 1. For any force multiplier का मतलब हमने effort लगाया कम और load ज़्यादा हो गया. Effort should be less than load. Mechanical advantage आ जाएगा formula. Mechanical advantage is load to effort. It will be L by E. कम effort में ज़्यादा. For force multiplier effort is less. So force multiplier के लिए, for force multiplier mechanical advantage has to be greater than 1. सर मैं कॉपी कर रहा था वो. Sir, I'm done. For all type of force multiplier, its mechanical advantage is always greater than 1. अब अगर किसी का mechanical advantage 1 से छोटा है तो हम उसको use ही क्यों करेंगे? हाँ? क्यों? जैसे अभी हमने पीछे एक पुली को देखा. To change the direction of effort, उसमें कितना था? सेम फोर्स लगाना है. बकेट को सीधे खींचो या पुली की हेल्प से खींचो. इस केस में लोड इज इक्वल टू एफर्ट. मैकेनिकल एडवांटेज विल बी 1. मैकेनिकल एडवांटेज 1 किसके लिए होता है? जब हम चेंज करते हैं डायरेक्शन को बट एफर्ट सेम लगाते हैं. ग्रेटर देन 1 तो फोर्स मल्टीप्लायर और तीसरा स्पीड मल्टीप्लायर. स्पीड मल्टीप्लायर के लिए एफर्ट हमें ज्यादा लगाना पड़ता है as compared to load. Its mechanical advantage is less than 1. लेकिन यूजली हम इस टाइप की मशीन को यूज करते हैं ओनली फॉर दोज केसेस जहां पर लोड कम हो, जैसे पेपर कट करना है, क्लॉथ कटिंग करनी है. For that we do not use this for the stone cutting and all.
एक सेकंड बेटा, give me just a minute, I'm coming back.
Yeah, sorry, actually it was important call. Yes, ये समझ गए फोर्स मल्टीप्लायर वन का मतलब हम सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज कर रहे हैं. ग्रेटर देन वन का मतलब हमने कम एफर्ट लगा के ज्यादा एफर्ट मिल रहा है. And less than one is used for the speed multiplier. So obviously these three will be the uses as per the machine. Otherwise why would we use the machine? ठीक है. मैकेनिकल एडवांटेज की कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि दोनों सेम ही क्वांटिटी का रेशियो है. लोड इज आल्सो फोर्स. मैकेनिकल एडवांटेज इज यूनिटलेस. It will be just a number lying between 0 to. Mechanical advantage is the ratio of load to effort, so it does not have any unit. इसको हम फ्रैक्शन में या इसको हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं. ओके, अब ये तो हो गया फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज करते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज हमें एक्सप्रेस करना होता है. सेकंड इज इफ यू यूज इट एज अ वेलोसिटी मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर, तो हमें इसकी वेलोसिटी रेशियो लिखनी होती है. सो दैट इज द नेक्स्ट टर्म. नेक्स्ट कॉमन टर्म यूज फॉर द मशीन इज वेलोसिटी रेशियो. Velocity ratio VR. So usually it will be greater than 1 when mechanical advantage is less than. So velocity ratio is the ratio of velocity of effort to the velocity of load. इसमें उल्टा हो जाता है. The ratio of velocity of effort to velocity of load. Velocity of effort to velocity of load is called velocity ratio. सर मतलब समझ नहीं आया क्या कहना क्या चाहता है ये. बस रेशियो ही है. रेशियो ये भी रेशियो है. वो था आपने कितना बोझ उठाया वर्सेस कितना आपने एफर्ट लगाया. और लोड इस ओवरकम वर्सेस एफर्ट. इसमें क्या है आपने अपना हाथ कितना मूव किया, दैट वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट. जैसे सीजर की केस में ना, वी गिव अ स्मॉल चेंज इन दी स्मॉल मूवमेंट इन दी हैंडल जहाँ से पकड़ते हैं. द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट वेलोसिटी ऑफ लोड इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो. तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. हाँ करेक्ट, दोनों के डिस्प्लेसमेंट का रेशियो. की टाइम तो सेम ही है, दोनों तरफ टाइम तो सेम ही है ना of that simple machine. So velocity into time कर दोगे तो displacement आ जाएगा. वैसे तो ये है velocity of effort divided by velocity of load. तो velocity into time is displacement. दोनों तरफ time से multiply कर दो, ऊपर नीचे it will be same time. So velocity of effort into t divided by velocity of load into t. Velocity into time क्या होता है? Displacement. So this will become displacement of effort divided by displacement of load. जहां पर अपने हाथ रख के एफर्ट लगाया है वहां का कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय जिस तरफ से वर्क डन हो रहा है या लोड मूव हो रहा है या लोड की तरफ फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट का कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. सो अनदर डेफिनेशन इज वेलोसिटी रेशियो की दो डेफिनेशन मिल गई. वेलोसिटी रेशियो इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू वेलोसिटी ऑफ लोड, or it is the ratio of displacement of effort to displacement of load. Correct?
right? Velocity ratio is also the ratio of displacement of effort to displacement of load. से Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. जो हम ट्रेडमिल पे रन करते हैं, इस ट्रेडमिल है सिंपल मशीन. ये ट्रेडमिल इज अ सिंपल मशीन और नॉट? मैकेनिकल वाली, वो इलेक्ट्रिकल वाली नहीं पूछता. इलेक्ट्रिकल वाली तो ऑब्वियसली इज नॉट अ सिंपल मशीन. Sir, नहीं होगा. नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? मतलब रीजन व्हाई नॉट? चलो समझते हैं सिंपल मशीन क्या होता है. अभी हमने उसकी डेफिनेशन तो लिखी नहीं. We'll come back to what is a simple machine. That's not a simple machine, but that's a machine. It's still mechanical machine जहाँ पर हमें. अब यहाँ पर एक ही समझते हैं, जैसे हमने बात की थी सीजर की. सीजर में लो डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा होना चाहिए, एफर्ट का या लोड का? किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होना चाहिए? ऑब्वियसली लोड. ऑब्वियसली लोड ना. हेलो. Yes, sir. हम जब उसको स्पीड मल्टीप्लायर बोल रहे हैं, स्पीड मल्टीप्लायर का मतलब क्या है? हम एफर्ट थोड़ा सा मूव करें, अपना हाथ थोड़ा मूव करें, और on the other side the loan should move much more than that, right? इसका मतलब हमें लोड का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा चाहिए. सो अगर किसी भी बॉडी में, किसी भी मशीन में हमें वेलोसिटी मल्टीप्लाई होके मिल रही है, तो उसका वेलोसिटी रेशियो क्या होगा? ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? लेस देन 1. फिर से अगर हम किसी भी बॉडी या मशीन को यूज कर रहे हैं एज अ स्पीड मल्टीप्लायर, एफर्ट हमने थोड़ा मूव किया, लोड ज्यादा मूव कर रहा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से. सो वेलोसिटी रेशियो विल बी लेस देन 1. तो जैसे फोर्स मल्टीप्लायर के लिए क्या होता था? मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1. ऐसे स्पीड मल्टीप्लायर के लिए वेलोसिटी रेशियो क्या होगा? लेस देन 1. बेटा ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. विहान, तेजस्वी, विहान, Yes, sir. अंडरस्टूड व्हाट आई सेड लास्ट? Yes, sir. क्या समझे? सर आपने बोला कि रेशियो लेस देन 1 होगा जब हमारा स्पीड मल्टीप्लायर होगा, क्योंकि हमारा एफर्ट अगर कम लग रहा है और लोड ज्यादा मूव हो रहा है, एफर्ट कम लग रहा है, तो फिर हमारा वो लेस देन 1 होगा. वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 होने पे वेलोसिटी मल्टीप्लाई होती है, और मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होने पर फोर्स मल्टीप्लाई होता है, राइट? सो इसको पॉइंट बाय पॉइंट एक करके लिख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, जो कि हमें मोस्टली चाहिए होता है इन दी स्पीड मल्टीप्लायर. if the displacement of load is more than displacement of effort. dl is greater than de, velocity ratio is less than 1. तो सही तरीके से जब हम वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा हमेशा लेस देन 1. स्पीड मल्टीप्लायर हैज वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1. सेकंड, अगर और ये ऐसा क्यों है वो भी समझ लेते हैं. क्योंकि वो रेशियो था इसलिए dl is less than e. अगर लोड का डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है और एफर्ट का ज्यादा हो रहा है, सेकंड,
If Greater than 1. greater than 1. If displacement of effort is more than displacement of load. ये थोड़ा चैप्टर ना बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी होंगी जो हमें थ्योरी के फॉर्म में रटनी पड़ेंगी. It's not like force or work energy. If the displacement of effort is more than displacement of load, then velocity ratio is greater than 1. और इसमें अब स्पीड मल्टीप्लाई नहीं होगी, स्पीड कम होगी. Effort speed ratio is greater than 1. So जब लोड फास्टर मूव कर रहा है, स्पीड मल्टीप्लाई हो रही है या आउटपुट में वर्क ज्यादा फास्टर हो रहा है, स्पीड से हो रहा है, then velocity ratio will be less than 1. ये हमें ध्यान रखना है. It is exactly opposite, right? Third case, if displacement of load is equal to displacement of effort, if the displacement of load is equal to displacement of effort, then velocity ratio is 1. Common sense. So बस यहाँ पे समझने वाली बात इतनी है कि जब हम स्पीड मल्टीप्लायर बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए क्योंकि स्पीड मल्टीप्लाई हो रही है, बट इट इज एग्जैक्टली अपोजिट. वो केस केवल फोर्स मल्टीप्लायर में या मैकेनिकल एडवांटेज सर में था. आपने सेकंड वाले में दोनों में डी ई और डी ई लिख दिया. सॉरी, DE is greater than DL. Right. Since it is also the ratio of two same quantities, two velocities or two displacement, it will also not have any unit. Velocity ratio also it has no unit. It will also be just a number. Mechanical advantage and second was velocity ratio. अब third one is दोनों काम एक साथ भी हो सकते हैं. दोनों काम एक साथ मतलब कि हमने फोर्स लगाया, फोर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, velocity is also changing accordingly, velocity ratio is also changing accordingly. Now what is the relation between the two, mechanical advantage and velocity ratio? So किसी भी मशीन में जब भी हम कुछ इनपुट लगा के वर्क कर रहे हैं, हमने इनपुट में फोर्स लगाया, एफर्ट लगाया, there is some displacement, force into work, displacement, that will be equal to work, right? Similarly output side में force अपने आप develop हो गया, load, and it also has some movement, load, displacement, so there will be an output work. In any system, in any simple machine, there will be work done which is called input work, and there will be work done received. So input work is done by the effort, the work done by the machine, work done by the effort. The work done by the effort on the machine is called input work. The work done by the effort on the machine is called input work. क्या आएगा इसका? Work done input will be effort multiplied by displacement of effort, because force into displacement is work done. Effort into displacement of effort is work input. Second is output work. Work done by the load. Load matlab again there is some force developed and that force will be causing some displacement.
The work done by the machine on the load. The work done by load on the machine is called output work. Output work will be load into displacement of load. Right? Input work done is effort into displacement of effort. Output work is load into displacement of load. अब अगर कोई machine 100% efficient है, there is no friction, there is no loss, there is no energy loss, then input work is equal to output work. That is called 100% efficiency. Efficiency of a machine is right. Efficiency of a machine is always equal to the ratio of output work received to the input work done. Output work किसने किया? Load ने. Input work किसने किया? Effort ने. So that ratio of work done by load to work done by effort, or the ratio of work output to input work done, is defined as efficiency. ये सब नॉर्मल से टर्म है जो हम हर जगह यूज करते हैं. मशीन के लिए बस थोड़ी सी लोड और एफर्ट वर्ड आपको बार बार और यूज करना है. Otherwise, it is the same thing. Ratio of output to input is efficiency. The ratio of work done by load. इसका ये कैसा साइन है एफिशिएंसी का? ये n को बड़ा लंबा कर दो बस. थीटा अच्छा ओके. output work to work done by effort, which is input work. Is defined as efficiency. Again, it will be dimensionless because both have work only. Defined as efficiency, it is denoted by symbol eta. Percentage के लिए 100 से multiply कर देंगे. Unit will not be there. It is usually expressed as percentage also. So eta is output work by input work. और आउटपुट का मतलब वर्क डन बाय लोड डिवाइड बाय वर्क डन बाय एफर्ट. Percentage efficiency when the same ratio is expressed as Sir, ये तो load by effort हो गया essentially. नहीं बेटा, load into displacement of load divided by effort की work done is force into displacement ना. Okay, sir. Work done by output by work done by input into 100%. आपने जो क्वेश्चन पूछा उसमें एक और आंसर मिल गया हमें. Efficiency क्या है? Work done by output divided by work done by input. अब इस वाले को हम लिख सकते हैं load into displacement of load. This is relation between efficiency, mechanical advantage, and velocity ratio. Since you asked the question, I'll derive here only. Eta is efficiency, Ma is mechanical advantage, and Vr is velocity ratio. So load multiplied by displacement of load, effort into displacement of effort. क्या लिख सकते हैं इसको? Load upon effort divided by displacement of effort to displacement of load, displacement of effort by displacement of load. Load by effort क्या होता है? Load by effort is called mechanical advantage, or displacement of effort by displacement of load is called velocity ratio.
The ratio of mechanical advantage to velocity ratio is efficiency, right? समझ गए बेटा, ये समझ आ रहा है? तेजस्वी, ये डेरिवेशन समझ में आ गया? Yes, sir. सर वो L into displacement of load into E into, अच्छा ओके सर, समझ गया सर। वो मैं ये पूछ रहा था कि वो L into displacement of load L upon E कैसे बन गया, बट फिर मेरे को समझ आ गया, आपने वो नीचे कर दिया। इनको एक साथ कर लिया कि लोड और एफर्ट का रेशियो अलग है, इसको नीचे कर लेगा तो वो नीचे बन डीएल नीचे आ जाएगा। हाँ ओके सर, समझ गया। तो क्या आ गया हमारे पास फॉर्मूला, मैकेनिकल एडवांटेजेस थीटा इनटू वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेजेस एफिशिएंसी टाइम्स मैकेनिकल एडवांटेज is efficiency times velocity ratio। अब जहां तक बात है वेलोसिटी रेशियो की, तो वेलोसिटी रेशियो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। किससे डिसाइडेड है? लेंथ से। अगर एक तरफ पुली लगी हुई है, एक तरफ आप पकड़ के खींच रहे हो, ये कितना एफर्ट मूव करेगा, कितना लोड मूव करेगा, ये तो स्ट्रिंग ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया कि दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं हो सकता किसी भी एक फिक्स मशीन के लिए। वेलोसिटी रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या चेंज हो जाएगा? अगर यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया, कुछ हीट प्रोड्यूस हो गई, तो व्हाट विल चेंजेस? इफिशिएंसी, और इफिशिएंसी के हिसाब से मैकेनिकल एडवांटेज विल आल्सो चेंज। करेक्ट? So for a given machine, its velocity ratio is always constant. For a given machine, velocity ratio is always constant. Therefore, efficiency, efficiency and mechanical advantage both decreases. Right? किसी भी मशीन के लिए वेलोसिटी रेशियो में कोई लोचा नहीं होगा, जो भी होगा वो इफिशिएंसी होगा। इफिशिएंसी में हुआ तो फिर मैकेनिकल एडवांटेज में होगा। वेलोसिटी रेशियो इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मशीन। ओके, राइट। तो उसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको एक वर्कशीट भेज देता हूँ जो लास्ट टाइम की बची हुई थी। वन लास्ट वर्कशीट प्रोबेबली ऑन वर्क फॉर एनर्जी। ने वर्कशीट में कितनी वर्कशीट की थी जयेश? क्या सर? इन वर्क एनर्जी पावर हाउ मेनी वर्कशीट्स वी डिड इन क्लास? सर सर 3 वर्क or 4? एनर्जी पावर में हमने आई थिंक 2 करी थी लास्ट क्लास में। दो या तो सर टोटल में 3 4 करी थी।
सर मेरे ख्याल से हमने Yes, 3 sir. कर थे। Sir, we did 3 and एक हमने circular motion पे किया था. हाँ जी, एक बार आपने हमें 2 वर्कशीट दी थी जिनका मिला के हमको करना था 35 मिनट्स वाला, और एक हमारा कुछ टेस्ट था, और एक आपने हमें फोर्स पे दी थी। वो 35 मार्क्स का ही टेस्ट। Hmm. Okay, I've shared one more PDF. Okay, Kabir is missing today. Yes, now I recalled. Mr. Kabir didn't join today. Acha, Kabir is here. Sir, I'm there. बेटा तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई पड़ी पूरी क्लास में. अच्छा. Sir, Yes, yes. You understood this machine kind of thing? Yeah, I have sent you the exercise worksheet number 4 from the work energy and power. Time is homework. You have to do this in homework and submit by today 7 p.m. ये भी शायद अभी केमिस्ट्री क्लास होगी, that's why I don't want you to lunch कर लो. ठीक है, worksheet 4 on work power energy tonight. I सर आपने कहाँ दिया है? ग्रुप में भेजा मैंने. सर 8 o'clock तक दे सकते हैं। 7 p.m. में क्या प्रॉब्लम? ओके सर, 7 PM दे देंगे। पीरियड को फोन करोगे सर मुझे 9 बजे तक दे दो. ओके ओके देन, थैंक यू. ओके सर, थैंक यू, बाय। Thank you, sir. Bye. बाय।